sorry. Her 2020 novel कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए grapples with the theme of long displacement of people migrating to West Bengal between the partition and the formation of Bangladesh. Aditi Maheshwari Goyal, she is the executive director of Vani Prakashan Group, one of the foremost publishers of Hindi writing in India. She is a publishing industry analyst, author of white papers, columnist, public speaker, copyright specialist, marketing professional, literature festival director, and a book lover. Uh, a little about our moderator today. Ved Raman Pandey, sir, is a faculty member at the Presidency University, Kolkata. His PhD research is on modernity, postmodernity, and Nirmal Verma. And his teaching interests are history of Hindi literature, medieval and modern Hindi poetry, Hindi fiction, and criticism. Please welcome them on stage with a good big round of applause. आप लोग बहुत दूर हैं हम आगे ले आए आइए आइए हम लोग भी आगे आ जाते हैं इसको पीछे करना नहीं तुम चेयर को ही आगे ले आओ ना हम आगे आ जाइए और आगे नहीं yeah that's a little better yeah. So, on behalf of Kolkata Literary Meet, I would like to extend my warm greetings to Daisy Rockwell, Aditi Maheshwari, and our own Alka ji, and you well-wishers. So, शुरू करते हैं भाषा की दुनिया, दुनिया की भाषा. You all know Daisy is now rock star in the world of translation, and her translation work, Tom of Sand, won Booker Prize. So, first question I would like to ask to Daisy. Daisy, how is the world now for you after Booker? You were pre-Booker and after Booker. What does you feel? How do you feel now? Well, it is different, but then of course there's ways in which it's no different because a translator just keeps translating, and translating is not that glamorous, I'm sorry to say. So we spend a lot of time alone thinking about words, and it's not like, I came out last year, I went to lots of festivals, so I met lots of people and it felt a little bit rock starish. But, but then you have to go home and open your dusty books and get back into what brought you there. So I think one big difference though is that I can speak out more for translators. I've been given the opportunity to mentor young translators, which I love. And so I can pass on that knowledge because I have all this knowledge that was just kind of sitting in my head, and now I can transfer it to other people. And I can speak out to translators to getting paid better, to having their names on covers, as we were talking about earlier today. So that's, I think, the big difference. And one more question to you, Daisy. Publishing house around the world would like to have you on board after Booker, I think. Well, not as much as I would hope, because there's still a long way to go. Getting publishing houses around the world
interested in South Asian literature and translation. People are used to just publishing literature written in English from India and Pakistan. And it seems, people always think translated literature is hard to read, like it pushes you a little bit more. So there's this reluctance, but I am getting a bit more receptivity to what I do. So there is a bit of change, but we still have to advocate a lot for it. You all know Alka ji is a prolific Hindi writer from Kolkata. Alka ji, this session is based on Hindi, so अलका जी, आपके जीवन में भी एक ऐसा क्षण आया था जब साहित्य अकेडमी अवार्ड आपको मिला था और आपके पहले उपन्यास पर ही मिला था. उसके पहले आपकी कहानियाँ छप चुकी थीं. आफ्टर सो मेनी ईयर्स अभी जो सेशन शुरू हो रहा था, अभी भी वो साहित्य अकेडमी और कलिकता वाया बाईपास, तो साहित्य अकेडमी मोमेंट जो था आपके लिए और वहाँ से जो बदलाव आया, उसके बारे में आप कुछ बताएं. देखिए, मैं अभी तक हिंदी में सबसे कम उम्र की लेखिका या लेखक हूँ जिसको साहित्य अकादमी मिला, और वो भी पहले उपन्यास पर. तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे सामने उसने रखा, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि, और कई लोग मतलब जो मेरे बहुत करीबी थे, बहुत शुभचिंतक थे, उनको भी ऐसा लगा कि मैं आगे लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा. लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगा कि पुरस्कार तो एक कृति को मिलता है, किंतु लेखक के पास तो और बहुत सारी कृतियाँ होती हैं देने के लिए. और जब मेरा दूसरा उपन्यास आया शेष कादम्बरी, तो मेरे दिल में ये बात थी कि अब कुछ लोग कहेंगे कि उतना अच्छा नहीं है, कुछ लोग कहेंगे कि उतना ही अच्छा है, और कुछ लोग कहेंगे कि बेकार है. ये तीन ही प्रतिक्रियाएं होंगी. लेकिन मेरे ख्याल से लेखक की जो अगर आंतरिक जो उसका अपना जो एक अर्ज होती है लिखने की और कहानियाँ बताने की, अलग अलग पात्रों में, अलग अलग समयों में, अलग अलग दुनियाओं को रचने की, तो मेरे ख्याल से वो एक पुरस्कार से उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है. जी, इसी प्रश्न को थोड़ा दूसरे तरीके से मैं अदिति जी से करना चाहता हूँ. अदिति जी अभी पब्लिशिंग की दुनिया में एक बहुत ही इमर्जिंग और प्रोमिनेंट नाम है, जो हिंदी पब्लिशिंग हाउसेस को जानते हैं, और इनसे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है हिंदी साहित्य की दुनिया को. अदिति जी, ये जो आपसे उम्मीदें हैं वाणी प्रकाशन के नए एक विजन या विजनरी के तौर पर, आप इसे किस तरह से देखती हैं? इससे पहले कि आपकी जो लाइफ रही है और अब जो कि आपको वाणी प्रकाशन के एक नए विजनरी या कहें कि वो फ्लैग बियरर के तौर पर देखा जा रहा है. अभी इनको फ्रेंच गवर्नमेंट ने पुरस्कार भी दिया है, और फ्रांस सरकार ने अभी एक पुरस्कार दिया है. तो हम चाहेंगे कि आप ये बताएं कि उसके पहले और अब में क्या फ़र्क पाती हैं आप? मेरा जीवन वाणी के साथ एक यात्रा है. जब मैं बहुत छोटी थी, मैंने 2 साल की 3 साल की, तो हमारा संयुक्त परिवार हुआ करता था, और हमारे घर के नीचे के फ्लोर में ही गोदाम था, और उस गोदाम से निरंतर बंडल उतरते थे, रिक्शा से, ट्रक से, और उस पे चढ़ते थे. तो बहन जी बंडल ले लो ये आवाज़, इसके साथ ही हम बड़े हुए हैं. और कई वर्षों तक तो मुझे यही लगता था कि बंडल चढ़ाना उतारना शायद एक ही प्रोफेशन है दुनिया में, किताबों का. तो किताबें और कागज़ अपने घर में ही बिल्कुल बहुत छोटी उम्र से देखा. तो पहले और बाद का जीवन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां, दशहरे की छुट्टियां, दिवाली की छुट्टियां, होली की छुट्टियां, नए साल की छुट्टियां, सब मम्मी और पापा के साथ दफ्तर में ही मेरा और मेरी छोटी बहन का बीतता था. उम्मीदें बहुत गर्मी देती हैं, नरमी देती हैं, आशीर्वाद की तरह लगती हैं. जब कुछ बुरा समय आता है तो उसमें संबल देती हैं कि इतनी उम्मीदें और आशीर्वाद आपके साथ हैं तो आप इससे तर जाएंगे. लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी देती है. जब भी ऐसा लगता है कि कोई गलत डिसीजन हो सकता है, या कोई ऐसे 2 बहुत सही डिसीजन सामने दिख रहे हैं, गलत कौन सा है वो समझ नहीं आता, तो इन उम्मीदों की कसौटी पर उनको तोल देना और उसके ज़रिए ये समझना कि उन उम्मीदों पर ये डिसीजन सही उतरेगा कि नहीं,
ये कर पाना, मुझे लगता है ये इससे बड़ा आशीर्वाद और कुछ नहीं है। जाहिर है कि इस यात्रा में धीरे धीरे कदम आगे बढ़ रहे हैं और साथ में ऐसे प्रबुद्ध लेखक हैं, तो मुझे लगता नहीं कि किसी भी प्रकार का गलत डिसीजन जानबूझकर कभी होगा, लेकिन अगर गलती से हो भी जाए तो मुझे लगता है हिंदी पट्टी इतनी उदार है कि उसके लिए अगर क्षमा याचना कभी की जाएगी तो मिलेगी। और तहे दिल से हर रोज़ शून्य से ही शुरू करना, ये हमने अपने पिताजी से सीखा है दरअसल। आप जो जो हुआ कल की उपलब्धियाँ, कल की, देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, हम सब जानते हैं डिसलाइक का बटन तो है नहीं, और जब सब कुछ लाइक ही लाइक है तो वो जो ये जो कॉस्टिक पॉजिटिविटी है, इससे भी थोड़ा बचना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए शून्य और खालीपन में, दोनों में फ़र्क है। तो हम उस खालीपन से बचें जो ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी हमारे जीवन में लाती है, लेकिन शून्य की समृद्धता को समझें, शून्य के महत्व को समझें, उसकी गहराई को समझें, और उस शून्य के साथ रोज़ सुबह शुरू कीजिए। जो सीखा उसको साथ लेके आगे बढ़ जाइए। लेकिन ये तो है कि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि और भारतीय भाषाओं में भी सभी लोगों के साथ चलना होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी पट्टी का लोकतंत्र और हिंदी पट्टी की समझ दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर बहुत अलग लेवल पे है, और मैं बहुत गौरव से कह सकती हूँ कि मैं हिंदी की प्रकाशक हूँ। मैं कुछ इसमें अदिति के बारे में जोड़ना चाहूँगी कि अदिति ने हिंदी प्रकाशन की दुनिया में एक तरह का जो डायनामिज़म जो अदिति लेकर आई है, उसके पीछे अदिति का खुद की एक समझ है, साहित्य की समझ है और भाषा की जो समझ है। जब मेरा उपन्यास, इसने जो 7वां उपन्यास था जो वाणी प्रकाशन को मैंने दिया, पहला मतलब हमारा जो संपर्क उससे हुआ, तो उसके लिए मैं ब्लर्ब लिखने के लिए मैंने कई लोगों को कहा था, और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि अदिति ने मुझे उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिख के भेजी जो मैंने ज्यों की त्यों ब्लर्ब में रख ली। तो ये समझिए कि एक पब्लिशर अगर ऐसी भाषा की उसकी पकड़ और समझ है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी बात है। डेज़ी, आप एक बात हम सबसे साझा कीजिए कि किसी रचना को, किसी टेक्स्ट को आप अनुवाद के लिए चुनती हैं, तो वो पैमाना, वो कसौटी क्या होती है? कैसे आपको लगता है कि हाँ, इसका अनुवाद मुझे करना चाहिए? हाँ। Well, first of all, I think it has to be, I have to be unable to imagine how I could translate it. So अगर आसान हो, अगर सीधा साधा है तो मेरे लिए नहीं है. So I have to, it has to be a, चुनौती होनी चाहिए मेरे लिए. And if there's a challenge, then I want to get in there and take it on. Sometimes I might lose, right? But I try. कोशिश करती हूँ. पर रेत समाधि का अनुवाद करना, तो रेत समाधि जिन्होंने हिंदी में पढ़ी है, तो मैंने 2018 में उसकी एक बुक रिव्यू के लिए समीक्षा लिखी थी, रिव्यू लिखी थी, तो उनके लिए वो हिंदी भी बहुत नई है। यानी कि वो हिंदी भी ऐसी हिंदी नहीं है जिसमें आमतौर पर जो किताबें उपन्यास आप देखते और पढ़ते हैं, तो वो हिंदी में इतना एक भाषा के साथ एक ऐसा खेल है, एक ऐसा खिलवाड़ है कि कई हिंदी वाले भी कहते हैं कि अरे भाई ये क्या है, इसको पढ़ा नहीं जाता है। तो उसको आपने अंग्रेज़ी में किया, और ऐसी अंग्रेज़ी में किया कि जो बुकर अवार्ड तक मिल गया, और उसको करते हुए आपको क्या, कहाँ पर कुछ बहुत मज़ा आया होगा, या कहीं पर आपको लगा होगा कि ये करना बिल्कुल असंभव है, या कहीं आपने कुछ और रास्ता अपनाया होगा, कुछ छोड़ दिया होगा, कुछ जोड़ दिया होगा, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। ठीक है. द प्रोसेस, यस। तो पहली बात ये थी कि जब मैंने स्वीकार कर लिया था ये प्रोजेक्ट, I didn't quite understand कि ये कितना मुश्किल उपन्यास है. Like I hadn't read the whole thing, पूरा नहीं किया था. So when I started, I was just going to do like about 5 pages गीतांजलि को भेजने के लिए कि अगर वो permission देगी कि नहीं. So मैंने I started with these 5 pages, and it took me a really long time.
And I was surprised. I couldn't figure out why it was taking me so long. But there were some very specific challenges, like right in the beginning, Ma is lying in bed, and she says, "Main nahi uthungi, nahi uthungi," and then it slowly turns into nahi uthungi, right? So it's like a pun, nahi se nahi tak, and so I knew that. I realized right then, all of a sudden, that if I couldn't handle that, I couldn't translate the book, because that's the crux, like that is the most important, like that's what the book is about, is that she won't get up and then she rises anew. So like, how can I get from that, from nahi se nahi tak, how can I do this? So I sat there and I played with letters and words, and I started to just make it phonetic. So I said, no, like I started to just like put all these extra vowels in. Because, nahi or naya, these are actually cognates, they're related words to English. So nahi and no, and new and naya, they are actually related words. So they're not so far apart. So I just started to stretch the vowels. And part of what I was thinking was, Sanskrit mein, Shlesha ek cheez hai that, like, a friend of mine has written a PhD thesis about it in English. And Shlesha is like, I tell people, it's like a pun that's not funny, right? Like, it's not meant to be funny. Because in English, puns are supposed to be bad jokes, basically, right? So I was using this idea of Shlesha, of like how something could mean two things at once, and carrying it from nahi to nahi, from no to new. And while I was doing this, मेरी बच्ची आई थी और उसने देखा कि screen पे क्या लिखा है और वो हंस पड़ी. She was like, that's so crazy. She just learned how to read. And she took a photograph of my screen and she laughed at me so hard. So a very difficult critic to please. But once I figured out I could do that, then the book opened up to me, when I figured out I could make those changes. And Geetanjali also gave me permission to play, Did Geetanjali help you? I mean, she can read English. Yeah. So did you take her suggestions, or there were some suggestions that she gave on her own? Yeah, I mean, sometimes she'd suggest things and sometimes she would have no idea. And sometimes I would agree with her and sometimes I wouldn't. And so I was explaining earlier today when I was at presidency that it's like, dosti bhi hai, lekin muqabla bhi hai hamari relationship mein, because we both have strong opinions. So we would sometimes, like about the title, we never agreed on the title, for example. I've been facing it with my translators now. दिक्कत ये होती है कि अगर जैसे कलिकथा वाया बाईपास का फ्रेंच में ट्रांसलेशन हुआ, स्पेनिश में हुआ, जर्मन में हुआ, तो वो भाषाएं मैं नहीं जानती हूँ. कन्नड़ में हुआ, मलयालम में हुआ, मैं नहीं जानती हूँ. लेकिन जो भाषाएं मैं जानती हूँ, यानी कि अंग्रेज़ी और बांग्ला, तो उसमें हमेशा मेरा एक दूसरा वर्जन होता है. जब मैं ट्रांसलेशन को पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि इस बात को ऐसे ज़्यादा अच्छे से लिखा जाना चाहिए. और हमेशा ये इनवेरिएबली होता है कि ट्रांसलेटर के साथ में वो कई बार उनको लगता है कि भाई आप खुद लिख रही हैं तो आप वो लिबर्टी ले सकती हैं, लेकिन अगर ट्रांसलेटर जो होता है वो उस तरह की लिबर्टीज़ नहीं ले सकता है. कलिकथा का मैंने अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन खुद किया था तो बहुत सारे बदलाव मैंने कर लिए, लेकिन अगर एक ट्रांसलेटर अपनी तरफ से कितना बदलाव कर सकता है, ये बताइए, ये आप बताइए. गीतांजलि ने अनुमति दी थी कि खेलने की अनुमति, like so she said very specifically that she didn't want it to be literal when the point was the playfulness of the language, because there are some sections where if you just translated literally what it meant, it would be nonsense and it would also not sound that great either. So the point was how these words sounded together. So I had to think of words that equivalently sounded that way together. So she did explicitly want me, it's sort of like jazz or like even Hindustani music where there's a point where you have to
improvise. And so she wanted me to improvise on these points that where the literal translation would have fallen flat. So she did give me permission to do that kind of thing. Otherwise, you know, it's harder if an author isn't comfortable with that. And I think that the joy of reading, that has to be transmitted from one language. How do you translate that joy into another language? And you must have been successful at that, otherwise the book would not have got the book. Right, yeah, it would have fallen flat. Daisy, one thing, there is a section in Red Samadhi that runs into 3 pages without full stop. I think in Hindi, in my view, this is the first instance. Itna lamba वाक्य. So how you overcome that? Well, a lot of people Section. think that that must have been really hard, but actually that I just put commas, you know. But Gitanjali didn't notice that I put commas, and then, you know, after we won the Booker, she was giving a reading, and suddenly she noticed there were commas, and she was very upset. And she immediately wrote to me and said, the commas must be removed. And I said, Gitanjali, you know, it's a little bit late for that. But she realized after she thought about it that, you know, sometimes punctuation it doesn't translate. Like, you can't necessarily use punctuation the same way. And in English, if I had no punctuation, then it's like sort of, it's too breathless. Like, it makes you feel like you're going to just collapse. You need like a rest. I think in Hindi it doesn't come across quite the same way. It's I'm sure it was too much, but it's not that hard to translate because there are still distinct thoughts that keep going. So it's not like there's a verb 3 pages later at the end of a sentence or something like that. I mean, there are verbs and subjects that keep coming up. Yeah. अलका जी, एक प्रश्न जो अभी आपने बात की उसी से संबंधित आपसे जानना चाहता हूँ सबके लिए कि आपने कलिकथा लिखा, आपने कलिकथा का अनुवाद भी किया, तो अनुवाद करते हुए आप कलिकथा को दोबारा लिख रही थीं या वह अनुवाद जो कर रही थी वो लिखी हुई कृति को पुनः लिख रही थी? देखिए, जब लेखक जब स्वयं अनुवाद करता है तो ये तो इनएविटेबल है कि वो उसको एक फिर से लिखता है। और कई जगह मैंने कुछ इस तरह के परिवर्तन हुए। हरीश त्रिवेदी जो कि मैंने अनुवाद के बहुत बड़े मैंने टीचर और वो रहे हैं, उन्होंने काफ़ी उनकी किताबें हैं ट्रांसलेशन पर, पढ़ाते रहे हैं। तो उसमें जैसे एक प्रसंग था, उसका टाइटल निराला की कविता पर था, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। और उसके बाद में एक मोनोलॉग था किशोर बाबू का हिंदी में, जो मतलब वो लगातार अपने जीवन के दुखों की गिनती कर रहे हैं लगातार कि ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ। करीब 2-2.5 पेज तक वो मोनोलॉग की तरह चलता है। तो जब मैं उसको अंग्रेज़ी में लिख रही थी तो वो एक पोएम की तरह मैं लिख पा रही थी, यानी कि कुछ राइम कर रहा था। मैंने एक फ्री वर्स नहीं था, मतलब उसमें कहीं कुछ राइमिंग इस तरह की मतलब एक उस तरह का एक पोएम के तौर पर वो चला आ रहा था। एक और वाक्य जो मैं बताती हूँ आपको कि उसमें एक सीधा सीधा वाक्य था कि तभी किशोर बाबू में अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दिया। अब इसको मैंने लिखा, एंड देन किशोर बाबू वॉज नो मोर द किशोर बाबू ऑफ योर। तो अब आप देखिए कि ये अनुवाद उस तरह से कोई सीधा अनुवाद नहीं है, पर मेरा ख्याल है कि एक लेखक जब खुद अनुवाद करता है तो वो इस तरह की लिबर्टीज़, वो इस तरह की आज़ादी वो ले लेता है, जो कि शायद एक दूसरा कोई अगर उसको करे तो वो शायद नहीं लेगा उसको। वो एक लिटरल, क्योंकि अक्सर यही होता है कि एक बहुत ही अनुवाद जो होता है वो बहुत ही लिटरल अनुवाद हो जाता है, माने जैसे का तैसा, तो वो उस भाषा के साथ वो फिट बैठता है या नहीं बैठता है, उस हर भाषा की एक अपनी प्रवृत्ति है। और एक बात जो बहुत मतलब अदिति तुम शायद बताओगी कि हिंदी भी तो कई इतनी तरह की हिंदियाँ हैं। अब हम जैसे जो बंगाल में कलकत्ते में पले बड़े, तो हमारी हिंदी एक तरह की हिंदी है। अब दिल्ली वालों की एक अलग तरह की हिंदी है, बम्बैया हिंदी अलग है, दक्षिणी हिंदी अलग है। तो ये जो तमाम हिंदियाँ हैं, और शायद अंग्रेज़ी भी, क्योंकि अगर बंगाली अंग्रेज़ी बोले तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि बंगाली है, साउथ इंडियन बोले तो आप पहचान लेंगे कि साउथ इंडियन है। तो यानी भारत में भी इतनी तरह तरह की जो एक वेरिएशंस हैं एक भाषा के अंदर में, तो उसका अनुवाद मतलब किस तरह से वो उसको किस तरह से आप पकड़ोगे? अनुवाद
की पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो एक एक दायरा है या एक पड़ाव है वो है संपादन का। मुझे हमेशा से ऐसे लगता रहा है कि अनुवाद के संपादकों का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत नेग्लेक्टेड एरिया है पब्लिशिंग में कि ट्रांसलेशन एडिटर्स, वैसे तो एडिटर्स ही बहुत कम हैं, लेकिन ट्रांसलेशन एडिटर्स तो ना के बराबर हैं। अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। बिल्कुल। और ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं हमारे सामने, हमारी प्रकाशन इतिहास में ही, कि अनुवादकों के स्लिप के वजह से, और वो अपनी जगह गलत नहीं है अनुवादक, लेकिन अनुवाद सिर्फ शब्द का नहीं है, मुहावरे लोकोक्ति का नहीं है, कंटेक्स्ट का भी है। जैसे एक आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, एक राजनीतिक किताब थी, एक राजनीतिक शख्सियत की जीवनी थी और वो महिला थी। तो उनकी पार्टी का किसी पार्टी के साथ कोलिशन था, तो इंग्लिश में उसको लिखा गया था बोथ द पार्टीज वर हैंडकफ्ड टुगेदर फॉर अ लाइफ टाइम, सीम्स लाइक अ लाइफ टाइम, कि बहुत लंबा कोलिशन चला उनका। हिंदी में अनुवादक ने उसको कर दिया कि उनकी पार्टी और इस पार्टी का चोली दामन का साथ था। अब ये मुहावरे के स्तर पे गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि एक महिला राजनीतिज्ञ है तो उसके लिए ये कई लेवल पर बड़ा अशोभनीय और अश्लील है, और ये सही अनुवाद नहीं माना जा सकता। इसी तरह से आज सुबह ही हमारी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में बात हुई। शरद जोशी जी से हम सब परिचित हैं, उनकी किताब है यत् तत् सर्वत्र। उसमें वो एक वाक्य लिखते हैं, भारत में यदि भगवान बनना है तो पहले पत्थर बनिए। उनका व्यंग्यात्मक ये है। आप इसको अंग्रेजी में अनुवाद करके देखिए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि पत्थर होना हमारे देश में मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ है। उसकी पूरी पद्धति है कि पत्थर होने का तो हम अर्थ समझ जाएंगे, पॉलिटिकल क्या है, स्टोन का कैसे, बस स्टोन को आप कैसे करेंगे। तो ये उसके पीछे पूरा कॉन्टेक्स्ट देना। तो कल्चरल ट्रांसलेशन, Arunavada is here with us. Hello, another genius translator with us. तो मेरे ख्याल से जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है ट्रांसलेशन एडिटर्स की, ताकि ये अर्थ के अनर्थ होने से बच जाएं। और भाषाई अनुवाद, शाब्दिक अनुवाद, भावानुवाद से अलग एक और अनुवाद है, वो है कंटेक्चुअल अनुवाद। कॉन्टेक्स्ट का भी अनुवाद होना बहुत ज़रूरी है। डेजी, वन थिंग, आपने एक अपने इंटरव्यू में कहा कि ये भाषा जो होती है, चूँकि ये सेशन भाषा पर है, तो अनुवाद की भाषा जो होती है उसमें भी आपको क्या लगता है कि यह पुरुष भाषा है और यह स्त्री भाषा है? क्योंकि मुझे एक इंटरव्यू में आपके ये विचार जानने को मिले कि आपने कुछ दिनों तक लगातार कॉन्शियसली मेल ऑथर्स को, मेल राइटर्स को नहीं पढ़ा, कॉन्शियसली केवल उस दौरान आप फीमेल राइटर्स को पढ़ती रहीं। फिर अचानक काफ़ी दिनों के बाद आपने एक मेल ऑथर की किताब निकाली और आपको अचानक वो भाषा ऐसी लगी कि ये भाषा तो उतनी कल्चर्ड नहीं है, ये उतनी सिविलाइज्ड नहीं है, या ये भाषा वो भाषा नहीं है जो स्त्री लिखती है। तो जब आप अनुवाद करती हैं किसी कृति का, तो उसमें इस भाषा को इसके साथ किस तरह आप इसे पकड़ पाती हैं, समझ पाती हैं, और ख़ासकर जो कि हिंदी जैसी भाषा से या उर्दू जैसी भाषा से आपको अनुवाद करना पड़ता है? तो I think it's not so much bhasha's drishtikon, right? Like that the perspective of gendered perspective is very different, and so in male writing you find much less of an interior world for women characters, right? That there are fewer women characters and they say very little, and we don't know what they're thinking a lot of the time. There's not an empathy on the part of the author with what the female characters are thinking, whereas you do find in women's writing empathy for the male characters. And this is always true, I think, with power relations, you know. So if it's
like somebody, say in American situation, you would find white writers not having empathy for their black characters, but the other way around is not true, because if you are in a position of less power, you're also able to perceive the feelings of the people who have more power. So it's really striking, because I went on a diet, that's what I like to say, of reading only women authors. And that after going back to reading a male author, it's like if you cut sugar out of your diet for 2 years or something, and then you suddenly ate a mithai, you would be like, it would just be a horrible experience, right? So, yeah, just way too sweet. And so that's kind of how it is with the male gaze, is that you get used to it if you read it all the time. But if you go on a diet and don't have any male gaze, then when you return to it, it's really quite offensive. So if given a choice, would you like to translate only female authors? I do have a choice, and that's what I'm doing. अलका जी, इस बात को आगे बढ़ाएं। अनुवादक के तौर पर आपको 3 तरह से, एक तो आपने अपनी कृति का ही हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया, फिर आपने दूसरों की कृतियों का भी अनुवाद किया, और फिर तीसरे तौर पर आपकी ही कृति का किसी अन्य भारतीय भाषा में अनुवाद हुआ। यानी कि अनुवादक के तौर पर आपकी 2 तरह की भूमिकाएं दिखती हैं, और एक ऐसी भूमिका भी है जहां आप उस अनुवाद को पढ़ सकने में, समझ सकने में सक्षम है जो किया किसी और ने है। तो ये इन तीनों अनुवादों को अगर आप देखें तो क्या फ़र्क पाती हैं और क्या लगता है आपको? देखिए, मैंने जैसे बताया कि अंग्रेज़ी अनुवाद जब मैं खुद कर रही थी तो कुछ मैंने ज़्यादा आज़ादी में ले सकती थी टेक्स्ट के साथ में, जो कि दूसरे की अगर कृति का मैं अनुवाद कर रही हूँ। अंग्रेज़ी से मैंने हिंदी में की अनुवाद, 13 हलफनामे के नाम से वाणी प्रकाशन ने ही छापा है, जिसमें 13 भारतीय लेखिकाओं की कन्नड़, मलयालम सबका अंग्रेज़ी के अनुवाद से ही, खाली महाश्वेता देवी का बांग्ला में उपलब्ध था, और उर्दू का तो उर्दू और हिंदी तो लगभग समान है। तो वो मैंने जब अंग्रेज़ी से अनुवाद किया हिंदी में, तब वो बहुत एक आनंद का काम था, क्योंकि आप अपनी भाषा को भी आप एक नए तरीके से बरतना सीखते हैं। यानी कि अंग्रेज़ी में जो बात जिस तरह से कही गई है, उसको जब आप हिंदी में लाते हैं तो आप हिंदी भी सीखते, साथ साथ आप हिंदी को भी सीखते रहते हैं। और मेरी किताबों का जो दूसरों ने अनुवाद किया, शेष कादम्बरी का अंग्रेज़ी अनुवाद वंदना सिंह ने किया है, कहानियों का भी किया है जो पेंगुइन ने छापा, तो मुझे लगता है कि हमेशा मुझे लगता था कि इसमें कुछ और बेहतर, क्योंकि मुझे लगता था कि यदि मैं जैसा न कर पाऊँ वैसा अगर कोई दूसरा करे, तब वो एक जॉय होता है, एक सोर्स ऑफ जॉय होता है। पर बिल्कुल जो एक सीधे सीधे हो जाता है तो उसमें वो सोर्स ऑफ जॉय नहीं होता है। और बांग्ला में तो लकीली मुझे मीनाक्षी मुखर्जी ने किया, और अभी शंपा रे ने कुलभूषण का अनुवाद किया है, तो वो अनुवाद तो बहुत ही अच्छे हैं। मुझे लगता है कि हिंदी और या हिंदी से जो दूसरी भाषाओं में अनुवाद होते हैं वो ज़्यादा सरल होते हैं, क्योंकि सभी भारतीय भाषाओं की प्रकृति जो है मूलतः एक है। लेकिन देखिए, कई बार ऐसा भी मैंने देखा, जैसे कि भालचंद्र नेमाडे का उपन्यास मैं पढ़ रही हूँ अभी, हिंदू जीने का समृद्ध कबाड़, वो मराठी से हिंदी में अनुवाद है। उसको अगर आप पढ़ते हैं तो आप हिंदी भी फिर से सीखते हैं, क्योंकि वैसी हिंदी कोई हिंदी वाला नहीं लिख सकता था। वो मराठी से जो हिंदी का अनुवाद है वो इतना सुंदर अनुवाद है, और आप उसमें तरह तरह के एक्सप्रेशंस को, तरह तरह के फ्रेजेस को, क्योंकि वो मराठी से आते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप उनको समझते भी हैं, और उनको एक अलग तरह से कि हिंदी पढ़ने का आस्वाद आपको मिलता है। ऐसे ही गुलाम मोहम्मद शेख का गुजराती से अनुवाद, घर जाते उनकी आत्मकथा संस्मरण है, तो उसमें भी मैंने देखा कि उसमें गुजराती का जो फ्लेवर है हिंदी में, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अदिति जी, एक बात बताएं आप कि पब्लिशिंग हाउस से जुड़े होने की वजह से कई रचनाओं के मूल टेक्स्ट, और फिर जैसा 13 हलफनामे की बात आई तो अलका जी ने उसका अनुवाद किया और वाणी प्रकाशन ने उसे प्रकाशित किया, तो जो मूल टेक्स्ट है वो भी आपको पढ़ने को मिला होगा और जो अनुवाद इन्होंने किया वह भी पढ़ने को मिला होगा।
तो आपको क्या लगा कि जो मूल कृति है और जो अनुवादक, वहाँ अलका जी को आप एक उपन्यास लेखिका के तौर पर न देखें, कहानीकार के तौर पर नहीं, बल्कि सिर्फ अनुवादिका के तौर पर, तो वो टेक्स्ट जब आपने पढ़ा, आपको क्या लगा कि मूल से जो अनुदित कृति है वो कौन सी आपको अधिक संप्रेषणीय या लगे कि भाषा के स्तर पर उल्लेखनीय कौन सी कृति लगी? मुझे अनुवाद पढ़कर ये लगा कि हमने बहुत कुछ पा लिया इस अनुवाद में, क्योंकि एक अनुवाद की प्रक्रिया में बहुत कुछ खोता है, लेकिन उससे बहुत कुछ ज़्यादा मिलता भी है। तो जब अलका मैम का ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा था और उसके बारे में हमारी चर्चा हुई थी, तो मुझे ये तो लगा था कि ये है तो मुश्किल प्रोजेक्ट, लेकिन पूरे कोविड के समय पे पूरी तल्लीनता से वो लगी हुई थी उसके साथ में, किताब के साथ, कहानियों के साथ, और उन भाषिक पब्लिक स्फीयर के लोगों के साथ भी उनका संवाद निरंतर चल रहा था, क्योंकि वो सभी भाषाओं के लोगों, जिन जिन भाषाओं से कहानियाँ थी, उनके लोगों के साथ में क्रॉस चेक कर रही थी, एडिटर्स के साथ, ट्रांसलेटर्स के साथ, उस भाषा के लेखकों के साथ, कि क्या ये भाषा हिंदी में सही बैठ रही है, क्या ये अनुवाद, क्या ये छंद, क्या ये मेटाफर हिंदी में सही बैठ रहा है। तो इतनी मेहनत करने वाला अनुवादक जो है वो जब किताब तैयार करता है, वो तो एक संग्रहणीय तारीख में तैयार होती है वो किताब। क्योंकि आप ये देखें कि पूरे लगभग भारत की 11 भाषाओं से उस पुस्तक में 13 कहानियां हैं, और 11 भाषाओं के लोगों के साथ संवाद करना, उसके बाद अपनी गलतियों को विनम्रता के साथ ठीक करना, जो मैं शून्य की बात कह रही थी ना, उस शून्य को जीना। मुझे लगता है कि यही कला का स्तोत्र, जैसे गंगोत्री है, कला यहीं से शुरू होती है, और यही एक कलाकार का गुण भी है, और उसको जीवित कालजयी बना देता है। यही है। अलका जी, एक और बात कि इसका शीर्षक बड़ा अर्थपूर्ण है, 13 रचनाएं हैं। ये हलफनामा शब्द जो है, ये आपको कैसे मतलब मुझे ये लगा, और मैंने भूमिका में लिखा भी था कि मेरा ये दावा है कि ये जो कहानियाँ हैं, जो तरह तरह की सब औरतों की लिखी हुई कहानियाँ, स्त्री लेखिकाओं की विभिन्न भाषाओं में, ये मेरा दावा है कि आप जब इन कहानियों को पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल अंदर से बिल्कुल विचलित हो जाएंगी, ये कहानियाँ आपको झकझोर देंगी। तो मेरा ये मानना था कि वो कहानियाँ इतनी पावरफुल कहानियाँ थीं, वो अलग अलग विषयों पर लिखी हुई, अलग अलग दुनियाओं की कहानियाँ, वाली कहानियाँ नहीं, वो सभी कहानियाँ बहुत एक आपको एक बिल्कुल एक अलग, जैसे महाश्वेता देवी की कहानी डायन, तो वो मतलब उसका जो उसके जो कुछ टुकड़े हैं वो मुझे अभी भी कभी कभी याद आ जाते हैं कि वो किस तरह से वो उसको डायन बनाया गया। तो मैंने वो इतनी, इसी तरह एक औरत थी, गुजराती की कहानी थी कि वो उसकी लड़की को मैंने हिंजड़े उठा करके ले गए या घर वालों ने दे दिया, और अब वो बूढ़ी हो गई है और वो लड़की जवान हो गई होगी, वो पहचानती नहीं है, तो वो उसको खोजने के लिए बम्बई में जो स्लम्स हैं जहाँ हिंजड़े लोग रहते हैं, वहाँ वो उस लड़की को खोजने के लिए गई है। तो मैंने उनके विषय भी ऐसे थे कहानियों के, और जो स्त्री स्वर का जो डेजी भी जो अभी कह रही थी कि जो स्त्री चेतना है और जो स्त्री का जो एम्पैथी का उसको पढ़ने का जो उसका जो पावर है, जो एक पात्र के साथ में जो महसूस करने का उसके दर्द को, तो मेरा ख्याल है कि वो कहानियाँ इतनी पावरफुल थीं कि मुझे लगा कि ये 13 कहानियाँ नहीं हैं, ये 13 एक तरह से गवाहियाँ हैं, ये 13 गवाहियाँ हैं कि स्त्री लेखन जो है वो अक्रॉस द नेशन माने कितना पावरफुल हो सकता है। कुर्तुलैन हैदर की कहानी थी उसमें, माने जो इतनी, और एक तमिल की कहानियाँ थी उनकी, तो मैंने उस कहानी से मैं इतनी ज़्यादा, वो विधवाओं का मतलब एक ग्रुप है जो, नहीं मैं नाम भूल रही हूँ, तो मैंने उनकी कहानियाँ और खोज करके और उन लोगों से मंगवा के उनकी और भी कहानियाँ पढ़ी कि मैंने ऐसी सशक्त कहानियाँ, उसमें हलूदी बोल करके एक पात्र है जो विधवा हो गई है, और किस तरह विधवाओं का जो ग्रुप है वो विधवाओं को इनिशिएशन करता है उनके अपने दुख बाहर निकालने के लिए। तो मतलब वो सब अद्भुत कहानियाँ थी, और मुझे लगा कि वो एक प्रमाण है, वो गवाहियाँ हैं कि स्त्री लेखन कितना पावरफुल हो सकता है। डेजी जी, when Arunab ji suggested you to do the translation of Red Samadhi,
and at one stage you feel that is going to be disastrous. So have you ever think of quitting the translation of Red Samad? Did I think of quitting? Probably I fantasized about it. But I think I realized it was a disaster when I was on the second or third draft. Because yes, so the first draft, I'm just busy like. And yeah, when I'm doing the first draft, then I'm just really busy, like just finding out what these little words, little things. But then when I got to the next few drafts, and it wasn't the tiny details, and like making these things come together, making them work as an entire piece of writing, that was when I decided it was a disaster. And I remember I was working all day at a library, and I came home and I said to my husband, "This translation is a hot mess." That's what I said. So never really knows, huh? No, never. Even Kolkata. Before I तो मैंने तो यही सोचा था कि disaster ही. आपके पास आऊं, इसके पहले लास्ट वन, आपने अलका जी की कोई कृति पढ़ी है? आज मैंने इनको दी है. आज ही. So I'm going to start. Translation के लिए नहीं दी है. उसका already translation अब हो से रहा है. शुरू. Now question from audience, please. Any question? Yeah. कुलभूषण के लिए I had approached you through Jason. कुलभूषण जो इसके पहले वाली किताब. अच्छा, okay. You're very busy. Oh, that's right. I remember that. Yeah. I was Yeah, hello. Hi, this is Aditya Basu. I am a Bengali who have spent around 15 years in Delhi, 6 years in Bombay. So I've been exposed to, the Hindi culture and Marathi culture and Bengali culture. So I grew up here reading Bengali books and English books. I had no idea of Hindi literature, right? So when I went to Delhi, it took me 15 years to understand the culture, but still I was not exposed to Hindi literary side, right? And same thing happened in Bombay. I was just 6 years. एक दो मैंने नाटक उधर देखा था, मतलब मराठी नाटक देखे थे उधर. फिर भी वो जो है कि I could understand if I could actually hear it. I mean, like when I'm actually hearing हिंदी में जो बातचीत हो रहा है या मराठी में जो बातचीत हो रहा है, तो मैंने वो नाटक को मैंने देख के अच्छा लगा. So I think we have a lot of to exchange between Bengal. It's not only about Hindi to Bengali or Hindi to English. Means India में इतने सारे languages हैं. Wherever you go, one of the main reasons we have this cultural divides, because ये जो आपका जो cross translation जो है ना, वो नहीं हो रहा है. Means आप जाके South में जाके रह जाओ, if you are not exposed to their thoughts from the start, when you are growing up, you are looking to them as a different country. So what's your thought on that? Like, can cultural divides be reduced with translation? Cross translation, so many languages we have in here. Definitely. I can talk. I think one big problem is that there are not enough bilingual translators translating between Indian languages. And English, there's a lot of focus on doing it in and out of English, right? And so a big problem is that English translations start to be used as bridge translations. So for example, right now, I'm talking a lot to somebody translating Tomb of Sand into Sinhala. And that seems absurd to me because even though there probably aren't that many translators that can read Hindi and Sinhala equally well, those languages are much closer syntactically, linguistically, culturally than English is to either of them. This poor guy is translating into Sinhala from my text. And so sometimes he asks me questions and sometimes I'll send him, even though he doesn't technically know Hindi, I'll send him phonetically what it says in Hindi and I'll explain. And then he can find a Sinhala equivalent that's better than whatever I put in English. So that's a really big problem, I think. And I'm sure that Aditi is doing some things to fix it, so she should address it as well. We're trying to raise some awareness and trying to mobilize some
bodies in the country where we could get some kind of translation fund together so that the interlingual translations, intralingual translation in the country could be supported. We are also trying to understand what happened to the National Translation Mission that we had. And of course, this is a big problem that Daisy ji underlined, that how many of us, for example, my mother is from Hyderabad, but I can just understand my Masi and my mom gossiping in Telugu and nothing else except that. I can't read Telugu, I can't read Telugu books. That's such a horrible thing, but then our school system is such that maybe my mother knows Sanskrit, Hindi, English, Telugu, Tamil, and a bit of Malayalam she can also understand. But with us here in this generation, it's so bad. So I think we have lot to do on this, on a personal family level also. लेकिन देखिए पहले मतलब शरद चंद्र वगैरह तो लोग सोचते थे कि हिंदी के लेखक हैं, मतलब इतना अनुवाद ताराशंकर बंदोपाध्याय, विभूति भूषण, शरद चंद्र सबको हमने ऐसे पढ़ा जैसे कि वो हिंदी के ही लेखक हैं. हाँ, लेकिन अब ये आज़ादी के बाद मेरे ख्याल से कि ये जो एक जो क्रॉसओवर था, ये पता नहीं क्यों ये टूट गया वो तार. अब जैसे मैं हिंदी में लिख रही हूँ कलकत्ता से, पर बांग्ला में जो किताबें हैं, मैंने आपके आनंद प्रकाशन ने छापी, वो बांग्ला के सबसे बड़े पब्लिशर हैं, लेकिन बिकती नहीं किताबें. तो इसके बारे में मीनाक्षी मुखर्जी ने एक बहुत अच्छा ऐसे लिखा था, डिवाइडेड बाय अ कॉमन लैंग्वेज, कि जो किताबें अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट होती हैं और जो किताबें ओरिजिनली अंग्रेज़ी में लिखी जाती हैं वो बिकती हैं, लेकिन जो ट्रांसलेट होती हैं वो किताबें बिकती नहीं हैं. माने अभी तक तो ये स्थिति थी. बहुत कड़वी सच्चाई एक ये भी है कि अब से कुछ समय पहले तक ट्रांसलेशन, ये किताब ट्रांसलेटेड है जब तक कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर और ऐसी ऐसी ना हो, उस पर लिखो ही मत कि ये ट्रांसलेशन है. और अगर लिख दिया तो बुक स्टोर पे आखिरी शेल्फ पे कहीं छाँव में धूल खाती हुई किताब ट्रांसलेशन का राख हुआ करता था. अब अनुवाद की परिस्थिति बहुत बेहतर है और अनुवाद और अनुवादक दोनों फ्रंट पे हैं. अब फर्क है. और डेजी रॉकवेल को हम धन्यवाद दे सकते हैं उसके लिए. Daisy, you've coined this term called dicklit. Could you spell out some of its features? And are these cis-het men who are writing, or is this all men in general? Yeah, actually that phrase I coined it specifically for writings about dictatorships. But it seems to have jumped the banks. I realized that recently because I was at Kala Ghoda Festival and my interviewer brought it up, and it seemed to have been amalgamated onto my decision to translate only women. But I literally, when I used the term dicklit, I meant writing about dictators. And now it's like, yeah, it's jumped the banks and people seem to be using it in all different ways. So, yeah, I mean, but I guess part of your question is what are the features of male writing? And I don't know, were you here before when I was talking about empathy? I feel like that there's a lack of empathy for female characters, and you know, I give a couple of examples, which I won't go into right now because I think we're getting late, but about books where by male authors where a woman is in sick or in pain or in a really bad state, and all we hear about is what the men are saying about it and how the men feel about it, and we never get into the woman's head, and she could just be lying there on the charpoy bleeding, and you're not even really sure if she's alive or dead, because the men have to sort the whole thing out. So that's a big feature, I think, is this lack of empathy or even curiosity about the interiority of women and women characters. One more question, please. One last question. Yeah. Hello, ma'am. Sorry, ma'am, I'm not good enough in English. So, आप हिंदी में बोल सकते हैं. जी, मैं बिल्कुल हिंदी में ही कहूँगा. मेरा एक सवाल ये है कि मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अनुवादक को
अपनी संस्कृति के साथ साथ जिस भाषा में अनुवाद कर रहे हैं उस भाषा की भी संस्कृति को जानना होता है, समझना होता है, उसके बारे में अच्छे से जान पहचान करनी पड़ती है। तो हिंदी भाषा को जब आपने अनुवाद के रूप में चुना तो आप हिंदी को एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति से आप कितना प्रभावित हुई हैं, और आपको क्या लगता है कि भारतीय संस्कृति में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसने मतलब जिनसे आप खुद भी एक भाषा के तौर पर नहीं, एक कह सकते हैं कि सांस्कृतिक तौर पर जुड़ना चाहेंगी, जुड़ना पसंद करेंगी? थैंक यू। Okay, so just make sure I have the question right. How do I deal with the cultural differences? I have been coming to India since I was 19 years old. So in this way, I feel like it's not so foreign to me. You know, people will say, oh, how could you translate this story about partition? How would you understand that? And I say, well, this is the 5th or 6th book I've translated about partition. And I started reading about partition literature when I was in my early 20s. So it's, something can be foreign when you're living right in the middle of it. Like, I think this other questioner was saying that you could be an Indian sitting right here and not know anything about Hindi literature, but I've been reading it since I was very young. And foreignness is relative term, and sometimes there are things that I have no idea about, mujhe kuch bhi pata nahi, and then I have to call on my secret bat phone, my different people that I talk to. One of them is in the audience. This is my mentee in Hindi, but he also helps me when I can't figure out what the heck these people are talking about. But it's usually like a very little teeny thing that I just don't quite understand. It feel like one word, and then I pound away at it until I understand. But that's part of the puzzle. I love the puzzle of translation, of trying to figure out what's going on. मेरे भी जो फ्रेंच और इटालियन ट्रांसलेटर्स हैं तो वो भारत के बारे में बहुत जानते हैं, क्योंकि वो बरसों बरसों से यहाँ आते रहे और हिंदी पढ़ाते रहे वेनिस में या पेरिस में, और उनको बहुत कुछ यहाँ के कल्चर के बारे में उनको पहले से बहुत कुछ मालूम है. उनके लिए ऐसा कोई वो फॉरेननेस वाला कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है. इंडियन कल्चर I think I'm very affected by it. Like, I had a job where my boss didn't want me to wear Indian clothes. I was actually working in a center for South Asia studies, but she thought it was weird that I was always wearing Indian clothes. So she said, go out and buy some white people clothes, right? So she was Indian herself. So I went to the mall. She said, go to the mall. Like, don't stop going to these Indian, stores and everything. So I went to the mall, and I carefully picked out what I thought were some white people clothes, and I put them on, and I came to work, and she said, you still look Indian. Like, what is... And then you look at all the tags, and they all said made in India. I didn't realize that at first. So, sometimes, like, if you start young learning about something or getting involved in a culture, you become a part of that, and that's a good example. Yes. So now for you, Daisy, India is your home away from home. That's right. Huh? Yeah. So thanks. We must applaud Daisy Rockwell, Thank you. Alka Saraogi, and Aditi Maheshwari ji, and for you also. Thank you. Thank you so much. Thank you, everybody here, for a great session. It was quite enlightening.